ಬಗ್ಗೆ ಆಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. शहर बेंगलुरु में मौजूद न्यू इंडिया फाउंडेशन के तहत कंप्यूटर एकेडमी का इफ्तिताह और मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम कावल बैसंद्रा के मस्जिद तूर में अमल में आया। न्यू इंडिया फाउंडेशन और मस्जिद तूर के सदर मुनव्वर पाशा ने रे ऑफ होप के साथ मिलकर कंप्यूटर एकेडमी का आगाज किया और इसका इफ्तिताह एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के हाथों किया गया। इस मौके पर मुल्क में अमन और भाईचारगी कायम करने और कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए मस्जिद दर्शन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मुकामी एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, अब्दुल अजीज और कई मुकामी बरादरान वतन ने हिस्सा लेकर खुशी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम बोलको हमारा पुलकेशनर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तूर मस्जिद में लैपटॉप कंप्यूटर की क्लास ओपन कर कोई दर्शन की और मस्जिद में नमाज़ पढ़ती आती जाती वो सभी चल रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में और भारत देश में और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी भाई भाई है, कुछ क्या भी प्रॉब्लम नहीं, सब हम सब एक है। उस तरफ से सब अच्छा रहता है, हम सभी एक है। उस तरफ से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पुलकेशनर में तूर मस्जिद में कंप्यूटर क्लास ओपन कर को है और अभी 20 कंप्यूटर क्लास का मैं दे रहा है और लैपटॉप कौन कौन डिग्री स्टूडेंट्स पर कोई 2000 आदमी को हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में लैपटॉप भी दे रहा है स्टूडेंट्स को। और हमारा मनोहर भाई प्रेसिडेंट से तरफ से अभी इसको स्कूल इम्प्रूवमेंट करने का वास्ते कोशिश करके हमें भी उसका साथ मिल को करने को तैयार है। सर ये बताएं कि ये मस्जिद दर्शन का जो प्रोग्राम है ये लगातार चल रहा है, तो दोनों कम्युनिटी को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स जोर करें क्योंकि हालात ऐसे हैं। नहीं, दो जने भी मिल को करना, सब भी साथ रहना, कोई भी दो आदमी का ग्रुपिज्म नहीं, एक ही करना, पूरा मिल को करना कर बोल रहा। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स unity of all communities living in this particular locality, and this is not the first time we are coming to the masjid. We have been growing up here and we have been coming here a number of times. It's only the conception of how people take each one. They say that no, you shouldn't enter the other people's place of worship. It's a false conception. A lot of people in this locality come to temples also, and we also come to masjid visit. And if we have to meet any of the Muslim leaders, we always come here, sit with the Maulis and we discuss all these things. And we have been living here peacefully for quite some time. Recently some kind of incidents did happen, but again none of the localites were involved. All people who are communally brainwashed, who came from other localities and disturbed peace in this particular locality. We have been living here peacefully for more than 60-70 years. Not a single incident of any communal violence has happened because of the local population which is here. It is only because of the intervention of people from other localities that the peaceful living of this particular locality has been corrupted. ಈಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇತ್ತು, ಆ ಭೇದನ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮು, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಏನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯೋಂಥ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಜನ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸ್ಜಿದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರೂ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. मस्जिद मंदिर सभी एक ही हमारे, सभी क्या भी नहीं. आज आप अंदर आए मस्जिद में, देखिए यहाँ का वातावरण कैसा लगा? सब 2 बार आया 3 बार आया मैं इधर आके है. इस मौके पर साबिक KAS ऑफिसर डॉक्टर R अब्दुल हमीद ने कन्नड़ में तकरीर करते हुए कम्युनल हारमोनी का पैगाम दिया और जमात इस्लामी के अकबर अली साहब ने अजान और नमाज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए अजान और नमाज का मतलब समझाया। देखो, कुरान ये कहता है कि मसाजिद अल्लाह है ना, मस्जिद अल्लाह के, हम सब अल्लाह के हैं, किसी को आने से कोई रोक नहीं सकते. कंडीशन इतना है कि वो पाक साफ रहे, है ना. मैं भी अभी नापाक हूँ तो मैं मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता. पाक साफ होकर आ सकता है, वो मांग सकता है, ये होना भी चाहिए. क्योंकि दूरी अगर ख़त्म होना है तो ये होना चाहिए. वो आए हैं, मांगे हमारे साथ, है ना, वो भी इज़्ज़त करते हैं. हमारे अजान को इज़्ज़त करने वाले एक बड़ा तबका है. जब भी ये आवाज़ उठ रहा है कि अजान हम आप माइक में नहीं दो, ये हम देहातों में अगर जाते हैं तो ये क्यों रोक दिया गया, किसके तरफ से रोक दिया गया? हम आपके साथ हैं, आप अजान बोलो, हमें बहुत फ़ायदा है. हमने सुबह हुआ मालूम होता है, हमारे पास ना मोबाइल है, हमारे पास ना वॉच है. हमारे बच्चे अजान के अलावा नहीं उठते हैं पढ़ने के लिए. उनका एक माइंडसेट बन गया है, एक सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट हो चुके हैं. अजान हम अगर पहला उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि अजान होंदे ಒಂದು ಬಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರೆ ಆಗಲಿ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. कई सारे लोग बोलते हैं. ये शिद्दत पसंद, ये देश को जो तोड़ने फोड़ने की जो चाल चल रहे हैं, ये देश में नहीं चलता, इस भारत में नहीं चलता. मैं तमाम रियासत के मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60-70 साल के बैठे हैं सदर बनकर, सेक्रेटरी बनकर, ऐसे बुज़ुर्गों को मेरी अदबन गुजारिश है कि अब ये माहौल नहीं रहा, आप छोड़ दें, आप उस कुर्सी छोड़ दें. आप नौजवानों को, ऐसे मुनव्वर जैसे अब नौजवानों को आप उभारें और सेकंड राउंड लीडरशिप कायम करें और अपने कौम की फलाह व बहबूदी खातिर जो कौम का दर्द रखता हो, जो अपने बच्चों के कौम के बच्चों का दर्द रखता हो, तालीम की फ़िक्र रखता हो, ऐसे नौजवानों को बागडोर संभालने दें सारे मसाजिद वाले. मस्जिद तूर का मैं सदर हूँ, मुनव्वर पाशा करके. तो मस्जिद तूर में इसलिए आज मस्जिद तूर का दर्शन किया गया है क्योंकि अक्सर आज लोगों में गलत फहमियाँ हो रहे हैं कि मस्जिद में क्या कर रहे हैं करके, ख़ासकर नॉन मुस्लिम्स के अंदर. तो हमें एक मैसेज देना चाह रहे थे कि पूरे मोहल्ले के नॉन मुस्लिम्स लोगों को बुलाएं और यहाँ पे उन लोगों को दिखाएं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और अज़ान करके बोला तो क्या है, नमाज़ करके बोला तो क्या है. इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी हम लोग दिखाएँ उन लोगों को और पूरी मस्जिद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में पूरा दिखाएँ कि समझ सकें कि हमारे यहाँ पर सिर्फ नमाज़ हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा. इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन हुआ है आज. क्या इंस्टीट्यूट है? न्यू इंडिया फाउंडेशन अकाडमी कंप्यूटर सेंटर करके ओपन करने के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ख़ासकर से मुस्लिम तबक़ात और जो नॉन मुस्लिम तबक़ात के बच्चे यहाँ पर बहुत हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद में बहुत से बच्चे घर पर बैठे थे. उनको एक कोर्स की तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो 3 महीने से 4 महीने का कोर्स है. ये हमारे न्यू इंडिया फाउंडेशन की तरफ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है और इसको एक ROH करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मुझे इसका साथ दिया है. हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे. लिहाजा मस्जिद दर्शन प्रोग्राम और कंप्यूटर एकेडमी का आगाज़ मस्जिद के सदर मुनव्वर पाशा, सेक्रेटरी सैयद इनायतुल्लाह और दीगर लोगों की काविशों से कामयाब रहा. सेकुलर टाइम्स के लिए बेंगलुरु से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट. बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.